accent in most of her content, she speaks less. She is not vulgar, not racist, not promoting weird culture. She entertains in her own way and it's cool. Do they really think Indians only wear traditional clothes? Also, there are different type of accent on India on different corners of country. This is pure racism. Nah bro, these peoples are that unemployed that they have time to cancel someone who didn't even do anything. She is stealing ideas, more like her ideas being stolen. And do not forget about Kika Kim, when she clearly did steal a lot of her videos. She only got famous because she stole 50% of her content yet still got away with it somehow. Seriously, this Indian hate needs to be stopped. It's okay to some point when it was all practical critique, but now it's getting ridiculous. She already mentioned she is Indian and she doesn't owe you I am Indian speech in every post, and if she was actually hiding her identity, she wouldn't go around using her real name Kritika, which is clearly an Indian name. If you still didn't get that, maybe blame your ignorance. She didn't hide anything, stop acting dramatic. In this video, we are going to talk about Mermaid Scale, also known as Kritika, and why some people have suddenly started hating on her simply because she is Indian. We will also discuss why Kika Kim's fans have been targeting her and how this unnecessary hate culture started in the first place. So make sure to watch till the end. For context, कृतिका और कीका दोनों ही इन्फ्लुएंसर्स हैं। कृतिका जो ऑनलाइन द मरमेड स्केल के नाम से फेमस हैं और वो एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर हैं। वहीं कीका किम, जिनका रियल नेम क्रिस्टीना किम है, एक इंटरनेशनल सोशल मीडिया क्रिएटर है वो, और वो पहले एक्सो टीम की मेंबर भी थी और वो कोरियन एथनिसिटी से बिलोंग करती हैं, लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग और लाइफ जर्नी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से हुई है और बाद में वो लोग एलए शिफ्ट हो गए। और कुछ वीडियोस जो कृतिका के थे उन्हें कीका ने कॉपी किया है। टाइम के साथ कीका किम पर मल्टीपल एक्यूजेशंस आए हैं कि उन्होंने सिर्फ मरमेड स्केल का कंटेंट ही नहीं बल्कि कई और स्मॉल क्रिएटर्स की वीडियो भी बिना क्रेडिट के कॉपी किया है, जैसे कि आप ये वाला वीडियो देखो। जैसे उन्होंने और भी क्रिएटर ब्रूक मॉन्क्स, जैनी शिगुरु, मरमेड स्केल के कई सारे कंटेंट को कॉपी किया है। जैनी शिगुरु ने खुद भी एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कॉपिंग के इशू को एड्रेस किया था। और कई लोगों ने भी ये कॉपी वाली बात को पॉइंट आउट किया है। शी इज ऑब्सेस्ड विद ब्रूक मॉन्क्स, जैनी शिगुरु, मरमेड स्केल. She even steal mermaid scale content like this is unfair when she get more views than some OG videos. Finally, someone stand up for themselves. You are right, she should give credit. Just because she gained some attention doesn't mean everything is hers. Finally, someone said that. To be honest, she steal every good videos without credit of OG creators and having more views than original, which is not fair. अब जो लोग कीका किम के फैंस है वो बोल सकते हैं कि सेम आइडिया हो सकता है, बट अगर आप एक मिनट के लिए सोचो, अगर कोई आपके असाइनमेंट को डिट्टो कॉपी करे और टीचर से प्रेज भी ले ले और टीचर को भी लगे कि वो उसका है और सामने वाला पर्सन आपको कोई क्रेडिट ही ना दे तो आपको कैसा लगेगा? और अगर वो पर्सन बोले इट्स जस्ट एन असाइनमेंट, आजकल सब ऐसा ही करते हैं, जबकि वो असाइनमेंट वर्ड टू वर्ड सेम है, तो ये जस्टिफिकेशन लॉजिकली गलत है और यही बात इस पूरे सिनेरियो पे हो रही है। फिर भी कुछ लोग टिकटॉक पे बोल रहे हैं कि इट्स जस्ट अ ट्रेंड। इस कंट्रोवर्सी के बाद फैंस ने काफी हैवी बैकलैश देना स्टार्ट कर दिया था और नवंबर 2025 में कीका किम ने कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले लिया था। अब उन्होंने दोबारा कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है। कंटेंट क्रिएशन में ओरिजिनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई क्रिएटर किसी और से इंस्पायर्ड है तो क्रेडिट देना बेसिक एथिक्स का पार्ट होता है। क्रिएटर्स के ओरिजिनल वर्क को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि क्रेडिट स्टील करना चाहिए। और कुछ लोग कृतिका को सिर्फ इंडियन होने की वजह से हेट देते हैं। From which country are you? Except English, which other language can you speak? If you don't know this already, I'm from India. I was born here. I can speak Hindi, Marathi, and would like to learn a few more languages like Japanese and Korean so I can watch anime and K-drama without the subs.
ये बात लोगों को समझनी चाहिए कि जो लोग ऐसे कंट्रीज में पैदा नहीं होते जहाँ इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज होती है, तो उनके लिए इंग्लिश एक लर्न लैंग्वेज होती है। वो इंग्लिश स्कूल से सीखते हैं और मोस्ट ऑफ द इंडियंस का मदर टंग डिफरेंट होता है। इसी वजह से जब वो इंग्लिश बोलते हैं तो उनका टोन और प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है और एक्सेंट अलग होता है। हर कंट्री का एक्सेंट अलग होता है, लेकिन कुछ फॉरेन कंट्रीज में इस एक्सेंट को लेके इंडियंस को मॉक किया जाता है। मॉकरी, बिलिटलिंग और कॉन्डरसेंडिंग बिहेवियर, ये सब इंडियन के सिनेरियो में नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। Hello everyone, welcome. Today we are going to be trying out something very different. For the first time, I'll be wearing, well, technically not really for the first time, but for the first time for you, I'll be wearing a traditional lehenga. It's Diwali season, you know what that means. ईस्ट एशियंस जब इंग्लिश बोलते हैं तो उनका एक्सेंट क्यूट बोल दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ईस्ट एशियन होते हैं। ये क्लियरली डबल स्टैंडर्ड्स है और बाहर जाके कुछ लोग अपनी नेशनैलिटी को हाइड करते हैं, क्योंकि जब लोगों को पता चलता है कि इंडियंस हैं तो लोगों का बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। इंडियंस और ब्रॉडली साउथ एशियन को जनरलाइज हेट मिलता है। तो इस केस में हम कृतिका को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने कभी अपनी आइडेंटिटी हाइड करने की कोशिश की हो, और जब से लोगों को पता चला है कि वो इंडियन है तो कुछ लोग उनके रूट्स के लिए उन्हें हेट कर रहे हैं, जबकि बाकी लोगों के साथ ऐसा होता है तो उसे रेसिज्म बोल दिया जाता है। लेकिन जब साउथ एशियंस के साथ ऐसा कुछ होता है तो उन्हें सिर्फ कम ही लोग सपोर्ट करते हैं। और हाँ, कृतिका ने पहले ही मेंशन किया था कि वो इंडियन है, और अगर वो अपनी आइडेंटिटी सच में हाइड कर रही होती तो वो अपना रियल नेम कृतिका यूज ही नहीं करती, जो क्लियरली एक इंडियन नेम है। और फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता तो वो उनकी गलती नहीं है, उनकी इग्नोरेंस है। उसने कुछ हाइड ही नहीं किया था पहले से। अब कुछ लोग बस अननेसेसरली ड्रामेटिक हो रहे हैं, और सीरियसली ये इंडियन हेट अब एक्सट्रीम लेवल पर हो रहा है। कुछ फॉरेन यूट्यूबर्स इंटेंशनली इंडिया का इमेज रॉन्ग वे से पोर्ट्रे करते हैं। और हाँ, यहाँ पर आई एग्री कि कई फॉरेनर्स के साथ लोग स्कैम करने की कोशिश करते हैं, विच इज रॉन्ग। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी कंट्री को ही डिफरेंट वे से पोर्ट्रे करो। लेकिन अब लोग सिर्फ कूल दिखने के लिए रेसिस्ट कमेंट्स करते हैं बिना सोचे समझे। और अब सडनली कृतिका के एक्सेंट को लेके भी कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बोला कि वो इंडियन है। सबसे कॉमन स्टीरियोटाइप यही है कि इंडियंस के इंग्लिश या एक्सेंट अच्छा नहीं होता। वही अगर वो बोल देती कि वो अमेरिकन है तो लोग उनके एक्सेंट को प्रेज करते। डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट एक्सेंट होते हैं और इसमें कोई शेम की बात नहीं है। और ऑनेस्टली ज्यादातर इंडियंस फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं, और कृतिका को जो हेट मिल रहा है वो उनके एक्सेंट की वजह से नहीं, इंडियन होने की वजह से लोग उन्हें हेट कर रहे हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।